Good evening, student. I welcome you on the platform of UGC NET JRF, one of the best teaching app, Filler Farm. Filler Farm is one of the best teaching platform, educational platform in the field of UGC NET JRF. And here I am Dinesh Kamli Brahmane. Once again, good evening, and I am here to teach you English literature. So, student, come fast and join the class. Yes. So, student, let us start. Student, as you know, our filler farm team, our filler farm is we are on different social media platform. You can join us in a Telegram, WhatsApp, Instagram. Okay. So these are social media apps. You can join us. And student, once again, I would like to request you, if you want to become an assistant professor, then you can join our assistant professor batch, new batch, Sahayak professor batch. Student, if you purchase our first paper course for UGC NET JRF, then you have to pay only 1,499 rupees. For paper 2 for 6 months, if you purchase, then you have to pay only 2,499 rupees, paper 2. Then if you purchase first and second paper for 6 months, then you have to pay only 2,499 rupees. And then paper 1 and paper 2, if you pay for 12 months, then you have to pay only 4,499 rupees. Student, this is minimum fee, and in this minimum fee you are having one of the best content, best teacher, and best teaching team. So, student, let us go ahead. Here is the platform. Here is the we are targeting UGC NET 2023. And student, if you purchase our course for paper first and paper 2, and then you will get notes, previous year's question paper with answers, and 100 plus mock test. Student, these are benefits, and this is the content you will get. Then if you want to get 10% off, by purchasing our course, then you can use my code DISENG 10. DISENG 10. You can use this code and you can get 10% off any filler farm course. Okay, you can purchase any filler farm course by using this app. Good evening. Good evening. Okay, so once again, here is my brief introduction, student, and you can go through this introduction. Here once again I would like to tell my name. Here is I am Dinesh Kamli Brahmane, and I have already qualified UGC NET in English literature. I am pursuing PhD, and I have been awarded by the government of India. And these are my few introduction you can read out. And yesterday we have discussed, let us revise once again briefly. Yesterday we have talked about A.K. Ramanujan, the full name Attipate Krishna Swami Ramanujan, and he has been awarded Sahitya Academy Award. Student, Sahitya Academy Award in 1999 for the his collection of poems, the collected poems. Padma Shri Award in 1976, and so we have discussed already major works. When we talk about major works, so speaking of Siva, Sanskara, you know, actually basically Sanskara, this is the work which is originally written by UR Ananthamurthy. You know student, ये जो वर्क है ये अनंत UR अनंतमूर्ति के द्वारा लिखा गया है, और इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में A.K. रामानुजन में, and basically it is written in Kannada. It is written in Kannada. Then these are some works written by A.K. Ramanujan. You have to remember, student, hymns for the drowning, poems of love and war, and these are some poems, relations, selected poems, the striders, second side, the collected poems. And
this is the well-known work. Is there an Indian way of thinking? An obituary, very famous poem. So we have discussed the obituary. I have already told about you, and then we have discussed about U.R. Ananthamurthy, Udupi Rajgopalachari Ananthamurthy. Are you getting my point, student? Yes or no? Understand? Got it? My voice, audio, video is everything is clear? Yes or no? Confirm me, then we shall move ahead. Okay. So Ananthamurthy, he was awarded with the Gyanpith Award, Padma Bhushan Award in 1998. Basically, as I told you, student, Sanskara, it is written in Kannada and translated by A.K. Ramanujan, student. Main character in Sanskara is Pranesh Acharya, you have to remember. Okay, it is a recent novel. Belongs to decadent Brahmin society, representatives of decadent Brahmin society, you have to remember. Then these are some works again. Student, then we have discussed about Michael Madhusudan Dutt, M.M. Dutt. So he is basically Bengali poet and dramatist, pioneer of Bengali drama, wrote Captive Lady. And Sri Aurobindo says about him that the god of himself took up the pain and wrought. है ना, ये अरविंदो जी ने माइकल मधुसूदन दत्त के बारे में कहा है. One of the most important work written by Michael Madhusudan Dutt is Meghnad Vad Kavya. Student, you have to remember. And he is considered as the father of Bengali sonnets. Here are some major works: Tilotama, Meghnad Vad Kavya, you have to remember. Then we discussed about Taru Dutt. My voice is clear or not? Yes, student, please confirm me. आवाज clear है? Yes or no? Are you happy or not today? I welcome you. After yesterday there was holiday and today we are again meeting. My voice is clear? Yes or no? आवाज आ रही है? Okay. Yes. So student, we discussed about Taru Dutt and we came to know about Taru Dutt that basically she was born in 1856 in Calcutta and died in 1877 at the very young age of 21. Yeah. And she was an Indian poet, novelist, translator who wrote in English and French. You have to remember, student, her father name is Govind Chandra Dutt, and then you can say she is considered as the first English writing woman of India. Then, student, we have discussed, here are some works written by Taru Dutt. Student, our Casuarina tree, tree of life, the lotus, and here is the major work, Lee General D. Malle Moislet Arvers. It is the first novel in French by an Indian writer. You have to remember, student, and it was published in posthumously, means after her death it was published. Then the famous work Bianca or the Young Spanish Maiden, 1879. And student, Bianca, this is the first novel in English written by an Indian writer. This is the first Indian, you can say, novel written by Indian writer. Student, you have to remember. And this question has been asked already. She was influenced by French Romanticism, French language and literature. Okay, thank you. Thank you. Yes. Unable to take print out of PDF. Yes, Dev Kumar ji, I will ask to the management what is problem. I will ask to the management. And one thing, Dev ji, yesterday I told that you should write the PDF with your hand. If you write it, if you make the more notes yourself, then it will memorize you quickly. बहुत ज़्यादा content नहीं है, बहुत briefly, लेकिन concisely I am giving you, and if you write it, लेकिन हाँ, yes, got it. But there are some stories summary I am giving. थोड़ा सा मैंने notes जो है थोड़ा vast कर दिया है, detail कर दिया है, कुछ summary add कर रहा हूँ. So I think if you take out PDF, then it will be okay. Now let us start today's session. है ना? ये brief revision है, जरूरी है. Without revision, there is you can say no division. So revision is very necessary. Got it? Agree or not? Yes. Let us go ahead today.
Yes. So before moving ahead, here are some questions. Let us discuss today's. First of all, there is a question. Manmohan Ghosh was the elder brother of स्टूडेंट मनमोहन घोष. बताइए किसके ब्रदर होंगे? यहां पर कोई ऐसा नाम आपको दिख रहा है? यस और नो? टेल मी व्हाट कैन बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Yes, student, got it? Answer is A, Sri Aurobindo. Answer is A. Sri Aurobindo was the elder brother of Aurobindo's elder brother Manmohan Ghosh. ठीक है? नो, अरविंदो. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, रेंडमली कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है? One thing let me tell you, student, content which I am providing you and some more facts, some more contents we will cover in MCQ series. कुछ क्वेश्चन ये अभी मैं आपको एक थोड़े से आपको दे रहा हूं. हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे because without MCQ there is no preparation. I believe in MCQs, I believe in objective type questions. So don't worry, I will give you more and more MCQs. Okay? क्योंकि कंटेंट कितना भी पढ़ लो, अगर आप MCQ नहीं करते हैं तो कंटेंट याद नहीं रहेगा. सो कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट. गॉट इट? है ना? अभी हम लोग Yes, our second question is name the poet who composed the ancient legends and ballads of Hindustan. ठीक है? Name the poet who composed the ancient legends and ballads of Hindustan. Yes, tell me. ठीक है? Then question number third है who among the following poets was influenced by the Kabir and rendered some of his verses into English. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है इन 1913 टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज. ये तो जानते ही हैं. एंड सावित्री नेपिक इन ब्लैंक वर्स. आई एम गिविंग यू 30 मिनट. है ना? आप ऐसा करें 1 का ए, 2 का बी, ऐसा जो भी आपको ठीक लग रहा है उसका आंसर लगाइए फटाफट, क्विक. आई एम गिविंग यू 30 सेकंड. चलिए, हियर आर द आंसर. ठीक है? तौरू दत्त है ना? सेकंड का आंसर है आपका तौरू दत्त. स्टूडेंट याद रखें, एंशियंट लीजेंड्स एंड बैलेड्स ऑफ हिंदुस्तान, इट वाज रिटन बाय तौरू दत्त. हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स आर इन्फ्लुएंस्ड, आपको मालूम है, सॉन्ग्स ऑफ कबीर, है ना? दीज आर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. थर्ड का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर. इन 1903 यू नो वेरी वेल, है ना? द गीतांजलि फॉर नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि. एंड सावित्री इट वाज रिटन बाय अरविंदो. अभी हम पढ़ेंगे इसको, हालांकि, है ना? ये कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया है. ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं. गॉट इट? यस और नो? अभी हम लोग बिल्कुल देखिए, फर्स्ट पेपर में आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में देयर इज अ यूनिट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड यू नो वेरी वेल स्टूडेंट दैट हमको सरल से कठिन की ओर जाना है. ठीक है? सो वी आर मूविंग अहेड. नाउ लेट अस सी. हियर इज द आंसर, यू कैन सी. नाउ लेट अस डिस्कस टुडे श्री अरविंदो. श्री अरविंदो स्टूडेंट, basically as you know, here is the birth date. He was born in 1872 and died in 1950. Remember student, Sri Aurobindo or Aurobindo Ghosh, remember, was an Indian nationalist. राष्ट्रवादी थे, फिलोसोफर, योगी, गुरु एंड पोएट. स्टूडेंट, आप लोग श्री अरविंदो जी को फ्रीडम फाइट, है ना, जो फ्रीडम, जो स्ट्रगल मूवमेंट है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें भी इनका रोल रहा है. पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, है ना? एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, ही पार्टिसिपेटेड, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट. जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था देश की आजादी का अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, उसमें भी उन्होंने बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया था. इंट्रोड्यूस्ड हिज विजन्स ऑन ह्यूमन प्रोग्रेस and spiritual evolution. After taking participation, है ना, जब उन्होंने जो है पार्टिसिपेशन लिया नेशनल मूवमेंट में, लेकिन बाद में वो अध्यात्म की ओर मुड़ गए. यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन में, he works also include
जो है philosophy, poetry and translations and commentaries on Vedas, Upanishad और Bhagavad Gita. Here I would like to tell you about Sri Aurobindo. After participation in Indian national movement, you can say he moved towards human progress and spiritual evolution. आध्यात्मिक उन्नति की ओर वो चले जाते हैं. श्री अरविंदो ऋषि बन जाते हैं. आपको पता होगा, आपको आश्चर्य होगा स्टूडेंट. एंड पौंडीचेरी में वो अपना आश्रम बनाते हैं. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट, willingly when I went to attend my national NSS camp in you can say I went to Thiruvananthapuram, लेकिन वहां से हम लोगों को in 2010 and 11, this is the time when I went to attend national NSS camp representing Madhya Pradesh. तो in 2010 and 11 I went there. ये जो श्री अरविंदो आश्रम है वहां पर मुझे जाने का अवसर मिला था. इन पौंडीचेरी I went there. और ये बहुत ही आपको वहां आध्यात्मिक फील होता है. यू कैन गो एंड यू कैन सी. ठीक है. तो यहाँ पर जो है इन्होंने बाद में वेदा, उपनिषद और भगवत गीता का बहुत गहन अध्ययन किया. उन पे कमेंट्रीज लिखी. कमेंट्रीज मतलब टिप्पणियां लिखना, उन पे अपने विचार लिखना कि क्या कहते हैं वेदास, क्या कहते हैं उपनिषद, क्या कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है, उनके बारे में इन्होंने लिखा है. सो स्टूडेंट, वन थिंग हियर यू हैव टू रिमेंबर, इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है, लेकिन नॉमिनेटेड फॉर प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था इन 1943. एंड फॉर पीस प्राइज, शांति का नोबेल. ठीक है, इनको शांति का नोबेल देने के लिए 1950 में इनको नॉमिनेटेड किया गया. स्टूडेंट, दो बार इनको टू टाइम्स श्री अरविंदो जी नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एंड इन पीस. आपको पता है नोबेल प्राइज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से टॉप मोस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड. दुनिया में सब है, वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, विच इज, ठीक है, प्रोवाइडेड, विच इज गिवन इन द डिफरेंट फील्ड. तो लिटरेचर में अरविंदो जी को लिटरेचर और पीस में दो बार नॉमिनेटेड किया गया है. यू हैव टू रिमेंबर, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, प्रश्न पूछा जा सकता है. My voice is clear, everything is clear, yes or no? Now here are some more points. And he started monthly philosophical magazine called Arya. And Arya नामक मैगजीन को इन्होंने शुरू किया था. The American philosopher Ken Wilber has called Aurobindo India's greatest modern philosopher sage. इन्होंने India's greatest modern philosopher sage मतलब है ना, आपके है कि शिखर, सर्वोच्च, है ना, सर्वोच्च शिखर या इस तरीके से होता है. तो उनको जो है केन विल्बर ने ये कोटेशन इनके बारे में कहा है. कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, हु सेड अबाउट दिस, किसके बारे में कहा, किसने कहा, ऐसा प्रश्न आ सकता है. स्टूडेंट, ही वाज इम्प्रिजन यानी उनको जेल हो गई थी बाय द ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको जेल में भी डाला गया था. फॉर राइटिंग आर्टिकल्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में लिखने के लिए इन इंडिया एंड रिलीज्ड. लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया था. और यहीं से स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, व्हेन ही वाज इम्प्रिजन्ड एंड रिलीज्ड बाय द ब्रिटिशर्स, ही मूव्ड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमन प्रोग्रेस. जब उनको देश के राष्ट्रवाद के प्रति, देश के राष्ट्रीय आंदोलन में वो सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, और जब ब्रिटिश रूल के द्वारा उनको इम्प्रिजन कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, और बाद में उनको छोड़ दिया जाता है उनके अच्छे व्यवहार के कारण, तो फिर बाद में वो आध्यात्मिकता की ओर और भारतीय संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए, मानव की उन्नति के लिए तरफ वो लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में चले जाते हैं. आश्रम जो है वो बनाते हैं. तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है. ड्यूरिंग हिज स्टे इन जेल, जब वो जेल में थे स्टूडेंट, ही हैड मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस. तो उनको बहुत ही रहस्यमयी आध्यात्मिक उनको कुछ अनुभूतियां हुई. एंड आफ्टर ही मूव्ड टू पांडिचेरी को, है ना, आज इसको हम क्या बोलते हैं, पुदुचेरी. यस और नो, है ना, इट इज अ यूनियन टेरिटरी. यस और नो, पुदुचेरी इट इज अ यूनियन टेरिटरी. यस और नो. लिविंग पॉलिटिक्स ये छोड़ देते हैं फॉर स्पिरिचुअल work. Got it student? My voice is clear, yes or no? Voice is clear, yes or no? Got it? See, then as I told you, founded a community of spiritual seekers in Pondicherry, a community banate known as the Sri Aurobindo Ashram in 1926 में जो है ये
इस आश्रम का निर्माण करते हैं, विच अट्रैक्टेड स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग आध्यात्मिकता की खोज करने वाले, आध्यात्मिकता है ना, जो फिलोसोफर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं और अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को उन्नत किया है। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। लेट अस टॉक अबाउट मेजर वर्क्स ऑफ श्री अरविंदो। मेजर वर्क्स ऑफ Sri Aurobindo. Student here, The Life Divine, it is published in 1939, deals with the theoretical aspects of integral yoga. एक एक्सटर्नल योगा है, एक इंटीग्रल योगा है। जैसे हम लोग थोड़ा सा हम बात करें, when you go for exercise, when you go for running, when you go for jogging, when you go to any gym, when you exercise there, it is external, it is, it improves your body physically, you will be fit. Am I right? But when you go for yoga, when you go for pranayam, when you go for meditation, when you take breath deeply, when you exhale and when you inhale your breath and you sit like that, you go for meditation for long time, for 2 3 4 hours. You are thinking, you are concentrating on your thoughts. That is, spirituality, that is integral meditations. I think this is he talks about integral yoga, at the art of living, you can say. And right now, what the Sri Ravi Shankar ji, whatever is doing, that is, you can say about integral yoga. So in India, in Indian culture, we have very, you can say, rich spirituality, rich spiritual culture. Agree or not? We have very rich spiritual culture, rich spirituality, rich, you can say, yogas. Now, yoga has been, you can say yoga is followed. Yes, yoga is declared international, on international level. आपको पता होगा, योगा दिवस, योगा डे, we celebrate yoga day. Let me know what is the date. Do you remember? Do you remember the date? Yoga day we celebrate. Do you remember the date? See, so the divine, the life divine, you have to remember, student. And then Savitri, student, a legend and a symbol. पूरा complete, पहला काम तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा टाइटल क्या है, व्हाट इज द कंप्लीट। ये नॉट 21 अगस्त, ममता, इट इज 21 जून। यस तृप्ति, गुड है ना, इट इज 21 जून। नाइस स्टूडेंट। yes, Savitri, a legend and a symbol, and it was published in 1950 and he died. So Savitri, student, it is an epic poem, you can say महाकाव्य है एक तरीके से, written you can blank verse, ठीक है, और बेस्ड अपॉन द थियोलॉजी ऑफ महाभारत। सावित्री और सत्यवान है ना, अश्वत्थ आई एम, एक सेकंड है ना, आई एम फॉरगेटिंग द पर्टिकुलर नेम, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। आई विल, जब भी हमको समय रहेगा हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। गॉट इट? चलिए, सो थोड़ा सा आई वुड टेल यू स्टूडेंट, जैसे एक बार हम लोग पूरे कोर्स में हुआ है और अभी आई वुड लाइक टू टेल यू, आई विल टेक योर क्लास फॉर 1.5 आवर, है ना, लगभग 1.5 घंटे क्लास रहेगी और उसके बाद में 2 घंटे की क्लास रहेगी। स्टूडेंट, यू हैव टू कीप पेस विद मी। वी हैव वेरी बिग, वी हैव बिग सिलेबस, बट वी विल कवर इट। और उसके बाद में ऐसे कुछ जो वर्क्स हैं, जैसे सावित्री है, द लाइफ डिवाइन है ना, समय के साथ में हम इनको बाद में, इनकी जो मेजर वर्क्स हैं, मेजर टाइटल से हैं, मेजर राइटर से हैं, इनके कुछ वर्क्स को लास्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम फर्स्ट स्टेप में we are, our ultimate aim to cover all the syllabus. And now I would like to request you student, please make sure you are doing, you are studying at home also. Go for self study also, ठीक है। प्रैक्टिस इट। आपको जितना कंटेंट दे रहा हूं ना, उसमें आप डिटेल में जाएं, देखें और ज्यादा पढ़ें, तो आपको क्या है, बहुत ज्यादा और मिलेगा, ठीक है। एंड इट रिफर्स टू पैसेज। ये सावित्री के बारे में इतना है कि ये सत्यवान जो उनके हस्बैंड को जो है वो किस तरीके से वो
बचा कर ले आती है, उनकी मृत्यु होने के बाद भी उनको जो है यमराज से बचा कर ले आती है। इस बारे में आप जान सकते हैं। महाभारत का एक बहुत ही शानदार किस्सा है, आप इसके बारे में जान सकते हैं। इंटीग्रल योगा के बारे में है, ठीक है। देन देयर आर सम अदर वर्क्स, द सिंथेसिस ऑफ योगा, the synthesis of yoga, then hymns to the mystic fire, the human cycle, on the Veda, essay on the Gita. ठीक है, these are some works you have to remember. Now let us move ahead. Today let us talk about another writer, one of the famous writer, Kamala Das. ठीक है, Kamala Das, student. Kamala Das, she was born on 31st March 1931 at Punnayarkulam in the coastal area of Malabar, है ना, in Kerala. आपको तो ध्यान रखना है Kerala state, and died in 2009, है ना. Recently she died just before 12, है ना, 13 years ago, 12-13 years ago she died, है ना. तो कमला दास के बारे में आप जान सकते हैं स्टूडेंट. एंड कमला सुरैया, उनका एक और नाम था कमला सुरैया. डू यू रिमेंबर? कितने लोगों को मालूम है कमला सुरैया? यस, कमला सुरैया भी उनका नाम रहा है. डू यू नो? यस आर नो? कमला सुरैया also known by her time, you can say one time pen name माधवी कुट्टी. कई बार पूछा गया स्टूडेंट दिस क्वेश्चन, सिंपली कई बार पूछा जाता है किनका नाम था, माधवी कुट्टी एंड कमला दास. तो ये तीनों नाम इनके हैं. कमला सुरैया, yes of course, ममता, she changed her religion, ठीक है, and you can say she accepted Islam and then she kept her name Kamala Suraya. Good. माधवी कुट्टी her pet name, बचपन का नाम, then Kamala Das. Got it? Yes, है ना. She became Muslim, she accepted Islam, ठीक है. And she was an Indian English poet and leading Malayalam author from Kerala. अच्छा, एक चीज और है कि भारत में विविध भाषाएं हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है. तो मलयालम केरला में है, कन्नड़ा कर्नाटक में है, तेलुगु आंध्र प्रदेश और के तेलंगाना में, तमिल तमिलनाडु में. तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट. There is an autobiographical element in all her works. Student, whatever she has written, student, we find that in her works autobiographical, यानी उसके स्वयं के जो events, whatever incidents happened with her, she tries to include that, you can say, in her work. जो भी उनके साथ में घटनाक्रम घटा था अपनी जिंदगी में, लेकर, है ना, उन घटनाक्रम को वो जो है अपनी राइटिंग्स में शामिल करने का प्रयास किया है. गॉट इट? यस आर नो? दे आर द मिरर ऑफ हर लाइफ, है ना. देखिए, दे आर द, यानी व्हाट, जो लिखा उन्होंने क्या है, इनके जो वर्क्स है वो क्या है, मिरर ऑफ हर लाइफ, स्पेशली इन द मैटर ऑफ मैरिज एंड सेक्स. सेक्सुअलिटी और मैरिज को लेकर के उनके हस्बैंड से उनके डिस्प्यूट रहे हैं, तो उसको जो है उसको लेकर भी उनके वर्क्स में बहुत सारे इनके मिलते हैं. इनका एक फेमस वर्क है स्टूडेंट, एन इंट्रोडक्शन इज अ पोएम बाय कमला दास व्हिच हैज फेमस लाइन. इस पोएम में स्टूडेंट, आई एम एन इंडियन, वेरी ब्राउन, बोर्न इन मालाबार, आई स्पीक देयर 3 लैंग्वेजेस, राइट इन टू एंड ड्रीम इन वन. रिमेंबर दिस कोटेशन, ठीक है. ये एन इंट्रोडक्शन इनकी पोयम है, ये कोटेशन लिखा गया है. आई एम एन इंडियन, वेरी ब्राउन, बोर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, 3 भाषाएं बोलती हैं, राइट इन टू 2 में लिखती है, ड्रीम इन वन. ये ड्रीम इन वन हम सपना किस में देखते हैं? वन थिंग लेट मी टेल यू स्टूडेंट, सपोज आपको रात को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुझे आज एक सपना आया था, आई ड्रीम्ड टुडे या टुनाइट. या देखिए, क्या कह रहा हूं, आप पर्सनली बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है. ममता, है ना, ये किसके साथ में इनका मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सब जो रहा है, ये है ना. देखते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आया रहेगा तो हम और चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है. गुड. तो मैंने ही पूछा है कि आप लोग ड्रीम, जैसे सपना देखना है, तो हम अपनी मदर टंग में देखेंगे या फिर और कोई इंग्लिश में देखेंगे आप?
Yes or no? Good. चलिए, देन हर फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री समर इन कैलकाटा, है ना, ये जो इनकी पोएट्री है समर इन कैलकाटा वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, है ना, ये समर इन कैलकाटा, ये ध्यान रखना, इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री। एट द एज ऑफ 42 शी पब्लिश्ड द डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी, ये भी ध्यान रखना है, समर इन कैलकाटा माई स्टोरी, originally written in Malayalam and later in English. It has 50 chapters. My story, Summer in Calcutta. My story is an autobiography. पूछा जा सकता है प्रश्न, स्टूडेंट, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, who has written it? Yes. Then in 2009, the Times is called her. What is the Times? It is a news, you can say, paper, or it is one of the best you can say newspaper. From where it is published, कहां से publish होता है? Anybody can tell me? From where? कहां से publish होता है? Yes, the Times is called her the mother of modern English Indian poetry. The mother of modern English Indian poetry. Tell me student, the Times जो है वो कहां से publish होता है? The Times, one of the most popular newspaper or magazine, you can say. It is published in USA. It is published in USA. Got it? Yes or no? Voice is clear? Got it? Actually, see. Now let us talk about some awards which she received. Sahitya Academy Award, Sahitya Akademi Award student in 1985, है ना, ठीक है। केरला साहित्य अवार्ड फॉर हर स्टोरीज इन मलयालम, एशियन पेन एंथोलॉजी फॉर पोएट्री इन 1964, एंड शी फाउंडेड अ पॉलिटिकल पार्टी आल्सो कॉल्ड लोक सेरा। ये लोक सेरा इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो इतनी चीजें आपको कमला दास के बारे में जानना है। गॉट इट? एंड हियर आर some more works. Summer in Calcutta, as we discussed, it consists of 51 poems. In this poem, she compares the sun, तो सूर्य की जो तुलना है, to a ripe orange से, ठीक है, तुलना करती है किसकी? सूर्य की। तो यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हैं। The Decadence 1967 contains 29 poems. The Old Playhouse and Other Poems 1973 contains 33 poems. The Testing of the Sirens, The Looking Glass, My Grandmother's House, Alphabet of Lust, ये इनका नॉवेल है स्टूडेंट, ठीक है, अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ठीक है, रिमेंबर इट, पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ नॉवेल। गॉट इट? चलिए, एंड नाउ हियर इज अनदर पोएट, सी जयंत महापात्रा। स्टूडेंट आप देखिए, आई वुड लाइक टू टेल यू, हम लोग जो है अभी पोएट्स में चल रहे हैं। अभी हमको नॉवेलिस्ट डिस्कस करना है ना, प्रोज राइटर डिस्कस करना है, ड्रामाटिस्ट डिस्कस करना है। तो यू कैन इमेजिन, सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू यू कैन से कलेक्ट सम मेजर इंपॉर्टेंट कंटेंट एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जयंत महापात्रा, एंड डोंट वरी स्टूडेंट, आई विल कवर ऑल द सिलेबस एंड वी विल डिस्कस मोर एंड मोर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एज आई टोल्ड यू, डोंट वरी, विदाउट डिस्कसिंग एमसीक्यूज योर प्रिपरेशन इज हाफ। बिना एमसीक्यू डिस्कस किए आपकी प्रिपरेशन हाफ है ना, तो इसलिए एमसीक्यू हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। सो लेट अस डिस्कस अबाउट जयंत महापात्रा। यस, see, जयंत महापात्रा बोर्न इन 1928 कटक इन उड़ीसा, है ना, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट नोन इंडियन इंग्लिश पोएट्स एंड एसेइस्ट। दोनों रहे हैं ये, एसेइस्ट भी है और पोएट्स भी है।
the first Indian English poet to win Sahitya Akademi Award for English poetry. Student most important. देखिए, समझिए जरा, है ना, यहां समझने का प्रयास करें. द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू विन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री. स्टूडेंट, अभी जितने भी साहित्य अकादमी अवार्ड है तो ज्यादातर उनका वर्क जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें मिला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में ही इनको लिखा इनका वर्क और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इंग्लिश पोएट्री के लिए. स्टूडेंट ध्यान रखना है, जयंत महापात्रा है ना, द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू विन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री. स्टूडेंट, ये इनकी जो पोएट्री है वो इंग्लिश में ही इन्होंने लिखा और इंग्लिश में ही पोएट्री लिखी गई, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है. he received this award for his poem relationship in 1981. रिमेंबर टू. कितने फैक्ट्स आ रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फ्रॉम हियर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. यू टू रिमेंबर द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू विन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री, है ना, ध्यान रखना है. हिज फेमस पोएम्स आर इंडियन समर, हंगर, डान टू पुरी. देखिए, पुरी क्या, जगन्नाथ पुरी, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन कटक इन ओडिशा. आपको पता है जगन्नाथ पुरी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल इन ओडिशा. यू नो जगन्नाथ पुरी, भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है वहां पर, तो जो है उनको बहुत अद्भुत लगाव है. तो डान ऑफ पुरी, है ना, डान भोर. एंड रिटर्न बुक्स ऑफ पोएम्स इन उड़िया 7 बुक एंड इंग्लिश. अब देखिए, इंग्लिश में इन्होंने 20 बुक्स लिखी है स्टूडेंट, और इन्होंने जो है लगभग उड़िया में 7 बुक लिखी है. गॉट इट, yes or no? See, student, when we talk about Jayant Mahapatra, so ये देखिए 1928 में इनका जन्म हुआ है. लेट अस सी some major works once again when we discuss. So Swayamvara and other poems, it was published in 1971. His first book of poem, remember, ठीक है. रिलेशनशिप के लिए इनको आप देखेंगे, सॉरी, रिलेशनशिप इनका पोएम है, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है. और पहले जो है इंग्लिश पोएट है जिनको इंग्लिश पोएट्री के लिए अवार्ड मिला है. क्लोज द स्काई 10 by 10, ये भी बहुत फेमस पोएम है इनकी. फादर्स हाउस, रेन ऑफ राइट्स, रिलेशनशिप 1980 में पब्लिश हुई, लेकिन इनको अवार्ड मिला है 1981 में. रिमेंबर. एंड द फॉल्स स्टार्ट. गॉट इट स्टूडेंट, यस आर नो? गॉट इट? One thing I would like to tell you student, go for self study also. मैं बहुत सारा कंटेंट आपके बीच में ला रहा हूं, इतना अभी आप करते चले, आगे और बढ़ते हैं. Now let us discuss about मेजर नॉवेलिस्ट प्लस विक्रम सेठ. विक्रम सेठ उन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने केवल नॉवेल लिखे हैं. अच्छा, स्पीड बहुत ज्यादा है स्टूडेंट, टेल मी. Any feedback? Are you satisfied with my class, yes or no? If you have any queries, student, soon I will be on Telegram group also. You can put your opinion there. ठीक है? Okay. देखिए, 2-3 चीजें आपको मैं बता दूं. Actually, we have very less time. We are targeting June 2023, and keeping in mind, है ना, the examination point of view, we have to cover up all the syllabus first of all. Second thing, we have to cover maximum MCQs. We have to solve maximum MCQs. MCQs means previous year's question paper and some mock test also. ठीक है? As you know, पहले दिन हमने केवल एक राइटर पढ़ा. First I discussed the syllabus. Then we for 2 days we discussed only two writers. And now you can say we cover 3-4 more you can say writers. So student, thus we will you can say we will be studying very speedily. We will keep, you can say, speed properly. Okay.
सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना, आपकी क्लास बहुत शानदार तरीके से चलेगी। सो लेट अस डिस्कस विक्रम सेठ। ठीक है, लेट अस डिस्कस विक्रम सेठ। सो स्टूडेंट, विक्रम सेठ के बारे में हम बात करते हैं। इनका विक्रम सेठ नॉवेलिस्ट भी हैं एंड ही इज अ पोएट आल्सो। सी, he was born on 20th June 1952. He was born on 20th June 1952 in Calcutta. Father name क्या है? प्रेम सेठ and mother लीला। Remember, है ना? His father name is प्रेम सेठ and mother लीला। Remember, कलकत्ता में जन्म हुआ है। ज्यादातर आप देखेंगे राइटर्स जो हमारे हैं, है ना, they all maximum writers they were born in either in Calcutta, in Bengal or in South। ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड इंग्लिश राइटर्स आप देखिए, यहाँ पर एक चीज और है, ऐसा नहीं कि नॉर्थ इंडिया या बीच मिडिल इंडिया में नहीं है। अब हिंदी राइट, चूंकि हिंदी बेल्ट जो अगर हम पढ़े होते हैं, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य, तो आपको ज्यादातर यहाँ मिलेंगे हिंदी साहित्य का, है ना, लैंग्वेज जो है उसके कारण यहाँ पर आपको मिलेंगे। स्टूडेंट, ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन पटना। जन्म कलकत्ता में हुआ, लेकिन ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन पटना एंड then he went to London in 1957। 1957 में ये लंदन चले जाते हैं। 52 में इनका जन्म हुआ, यानी अकेले तो नहीं जाते होंगे इन्हें इतनी जल्दी। थोड़ा सा और देखेंगे इसमें। विक्रम सेठ बीइंग अ पॉलीग्लॉट। स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीग्लॉट? जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते एग्जाम में, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो यहां पर आप देखेंगे पॉलीग्लॉट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीग्लॉट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीग्लॉट स्टूडेंट? डू यू रिमेंबर पॉलीग्लॉट का क्या मतलब होता है? इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीग्लॉट? Polyglot means who knows many languages, who speaks many languages। Good। यहां पर देखिए, very nice student, you can see as being a polyglot has learnt Welsh, German, French, ठीक है, Mandarin, English, हिंदी and Urdu as well। ठीक है, सो ये सारी भाषाएं इन्होंने सीखी स्टूडेंट। ठीक है, पॉलीग्लॉट थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे। And when we talk about Vikram Seth, so he received several awards। ठीक है, he received several awards। बहुत सारे अवार्ड जो है इन्होंने जीते हैं, जैसे पद्मश्री in 2007। पद्मश्री, he received पद्मश्री in 2007। साहित्य अकादमी अवार्ड in 1988। ध्यान रखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड in 1988। प्रवासी भारतीय सम्मान 2005। प्रवासी भारतीय सम्मान 2005। कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज 1985। रिमेंबर दीज अवार्ड, टू मेजर अवार्ड्स। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, लिख दिया जाता है कि विच अवार्ड या विच इज अमंग दीज अवार्ड्स विच अवार्ड इज नॉट गिवन या वाज नॉट गिवन। निम्न में से, है ना, among following these award which award was not given, कौन सा अवार्ड नहीं दिया गया। 3 4 5 ऑप्शन दे देंगे और बाद में कूट बना देंगे ए और बी, ए बी सी, 1 2 3 इस तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल ही होते हैं, घुमा देते हैं, कूट बन जाते हैं, इसलिए हमको थोड़ी सी दिक्कत आती है। गॉट इट? यस और नो? तो रिमेंबर अबाउट विक्रम सेठ, born in Kolkata, है ना, and went to London and he was polyglot, received Padma Shri in 2007, Sahitya Akademi Award in 1988 and Pravasi Bharatiya Samman 2005। Here are some major works written by Vikram Seth student। Here are some major works written by Vikram Seth student। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इनके बहुत फेमस मेजर वर्क्स हैं जो हमको जानना है। स्टूडेंट, यहां पर हम इनको नॉवेलिस्ट के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ पोएम्स भी मैं आके बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेजर वर्क्स ट्रेवल बुक। मैं प्रयास कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव पीपीटीज क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले दिन और अभी में आपको बहुत फर्क नजर आ रहा होगा। यस आर नो, एग्री और नॉट? Gradually I am improving PPT, I am improving way of teaching, because you now you have
come to know about me, my way of teaching, and I know you. So is there any difficulty? Is there any you can say feedback? Classes is it's fine or not? If it is fine, then will be still I will improve. आपको अभी और बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत शानदार हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको आगे और जो है क्लासेस बहुत अच्छी मिलने वाली। चलिए, तो ये ट्रेवल बुक है, इन्होंने अलग अलग जगह पे यात्राएं करी तो उसको अनुभव को इन्होंने शेयर किया है। द ट्रेवल बुक फ्रॉम हेवन लेक, बुक का नाम है द ट्रेवल बुक फ्रॉम हेवन लेक, and it was published in 1983, was the longest novel. Student, it is a novel in verse form written in English. ध्यान रखना है स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट नॉवेल है और इन वर्स फॉर्म। हालांकि और लॉन्गेस्ट नॉवेल आगे भी आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय वर्स फॉर्म? इनकी एक कला है विक्रम सेठ की कि ही राइट्स इन वर्स फॉर्म। आगे और हम पढ़ने वाले हैं ये, जैसे द गोल्डन गेट और ये, ठीक है। वर्स फॉर्म मतलब पोएट्री फॉर्म है, स्टेंजा टाइप से मतलब, ठीक है। फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स में आप जैसा भी कह लीजिए उसको। तो इनको जो है ये एक अपनी बात कह रहे हैं, नॉवेल है, नरेटिव फॉर्म है, नरेशन, नरेट कर रहे हैं अपनी स्टोरी को, लेकिन वर्स फॉर्म में। गॉट इट? यस आर नो? पोएट्री फॉर्म में है ना, लिरिक्स फॉर्म में। यस आर नो? गॉट इट? गॉट इट? यस आर नो? सी, आगे हम बढ़े। द गोल्डन गेट है ना, इट वाज पब्लिश्ड इन 1986। 1986, द गोल्डन गेट was his first English novel, ठीक है। देखिए 1986 में ये लिखा गया है। हालांकि ये भी नॉवेल के रूप में ही माना जाता है, लेकिन ये एक जो एक ये वो एक तरीके से वर्स फॉर्म में है। नॉवेल इन वर्स कंपोज्ड इन 590 स्टेंजाज, ये भी जो है, ठीक है। हालांकि ज्यादातर जो है इसको प्रेफरेंस मिलती है द गोल्डन गेट को एज अ फर्स्ट नॉवेल। नॉवेल इन वर्स, इट वाज आल्सो रिटन इन वर्स एंड इट ब्रॉट सेट साहित्य अकादमी अवार्ड। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड किस वर्क के लिए मिला है, कब मिला है? कितने क्वेश्चन यहां बन रहे हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी पुट अप फ्रॉम हियर, सो यू हैव टू रिमेंबर, है ना। साहित्य अकादमी अवार्ड, इट वाज गिवन इन 1988 फॉर द वर्क द गोल्डन गेट, इट वाज रिटन इन 1986, ठीक है। ये ध्यान रखना है, नॉवेल इन वर्स। एंड प्रोटागोनिस्ट इनका जो मेजर है वो है जॉन बनियान। तो ये जैसे द गोल्डन गेट है, तो हम लास्ट में, एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, एट लास्ट व्हाट विल वी डू, आई विल ट्राई टू कवर अप द मेजर समरीज एंड एमसीक्यूज। जैसे द गोल्डन गेट है विक्रम सेठ का, तो इसको हम लोग जो है लास्ट जो क्लासेस रहेगी पूरे सिलेबस कवर करने के बाद में मेजर राइटर्स की जो मेजर पोएम्स हैं, मेजर नॉवेल्स हैं, मेजर ड्रामास है, उनको लेंगे हम पूरे इंग्लिश लिटरेचर के जो मेजर राइटर्स है, कंबाइंड कॉम्बो। गॉट इट? यस आर नो? अभी मैं आपको पूरे सिलेबस में लेकर जा रहा हूं, बहुत शानदार कंटेंट के साथ में। आप लोग इसमें और डिटेल में जाए। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क रिटन बाय विक्रम सेठ इज अ सुटेबल बॉय। स्टूडेंट, कितने लोगों ने इसको पढ़ा है या नाम सुना है? अ सुटेबल बॉय, अ सुटेबल बॉय, यस आर नो? गॉट इट? वन ऑफ अ सुटेबल बॉय। स्टूडेंट, 1993 में ये पब्लिश हुआ है, अ सुटेबल बॉय। स्टूडेंट, आप देखिए, हर माँ का सपना होता है कि मेरी बेटी को एक अच्छा लड़का मिले। गॉट इट? मैं यहां पर आपको एक लाइन में कहूं, ठीक है। एवरी मदर हैज अ बिग ड्रीम दैट शी, है ना, हर डॉटर शुड हैव, मस्ट हैव, या शैल हैव, विल हैव, जो भी आप लगा लो, है ना। अ सुटेबल बॉय, एक बहुत अच्छा लड़का मिले, एक बहुत अच्छा घर मिले, ताकि वो बहुत अच्छी जिंदगी निकाल सके। हर माँ का, क्या पिता का भी सपना होता है, बिकॉज आई एम आल्सो हैविंग टू डॉटर्स। सो स्टूडेंट, अ सुटेबल बॉय, इट वाज पब्लिश्ड इन 1993। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफली लेट अस डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से फेमस नॉवेल। आपको बता दें स्टूडेंट, अ सुटेबल बॉय, इसके टाइटल से पहले ही, ये सिर्फ टाइटल लिखा था, विक्रम सेठ जी ने केवल अ सुटेबल बॉय टाइटल लिखा। कि जैसे कोई फिल्म बनती है ना, तो प्रोड्यूसर जो होते हैं
है ना। जैसे डायरेक्टर ने फिल्म के लिए कहा कि ये फिल्म बना रहे हैं, तो प्रोड्यूसर या जो पैसा लगाने वाले होते हैं जो, तो वो पहले ही उसको खरीद लेते हैं या उसको पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसे अ सुटेबल बॉय ये पूरा नॉवेल लिखने के पहले ही 1 करोड़ रुपीज 1 करोड़ रुपीज हैज बीन गिवन टू विक्रम सेठ इन एडवांस। एडवांस में ही विक्रम सेठ जी को 1 करोड़ रुपया दे दिया गया था। ऐसा कहाते हैं, ऐसा सुना है, अब ये रियलिटी है, बिल्कुल होगी क्योंकि बहुत फेमस नॉवेल रहा है। तो इट प्रोपेल्ड मतलब उनको शिखर पर पहुंचा दिया, सेट इनटू पब्लिक लाइमलाइट एंड वॉन WH स्मिथ प्राइज इन 1993। एकदम से इनको शिखर पर पहुंचा दिया, इनको है ना बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया इस नॉवेल ने। एंड स्टूडेंट, ठीक है, it is one of the longest novels ever published in a single volume in English language। स्टूडेंट बहुत बड़ा है ना, इसमें 1300 पेजेस में लगभग लिखा गया, आप सोच सकते हैं, इन इंग्लिश सिंगल वॉल्यूम में। वो भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे नॉवेल क्या होते हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, 12 बुक, 13 बुक, 12, 10 बुक्स इस तरीके से पब्लिश होते हैं। लेकिन इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉवेल्स एवर पब्लिश्ड इन अ सिंगल वॉल्यूम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। गॉट इट? यस और नो? Student, it is set in newly post independence post partition India। न्यूली पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी अभी अभी जो देश आजाद हुआ है ना, देश का जो पार्टीशन हुआ है, यानी जो भारत का विभाजन हुआ है, नया नया अभी जो भारत आजाद हुआ है, तो आजादी के बाद इसका सेटिंग है, इसका प्लॉट है, इसकी थीम जो रखी गई है वो आजादी के बाद की है। इट फॉलोज द स्टोरी ऑफ 4 फैमिलीज, 4 परिवारों में के बीच में है, ओवर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, 18 महीने की कहानी चलती है। एंड सेंटर्स ऑन मिसेस रूपा मेहराज एफर्ट, मिसेस रूपा मेहराज एफर्ट्स टू अरेंज द मैरिज ऑफ हर यंग डॉटर लता, है ना, उनकी जो बेटी है लता, है ना, उसकी शादी को लेकर अरेंजमेंट्स करने के लिए जो एफर्ट्स लगाती है मिसेस रूपा मेहरा, एक सुटेबल बॉय ढूंढने के लिए, टू अ सुटेबल बॉय। ठीक है, एक सुटेबल बॉय ढूंढते हुए मिसेस रूपा जो मेहनत करती है, जो प्रयास करती है, उस एफर्ट्स को इसमें दिखाया गया है। और आज भी आप देख सकते हैं, ये हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में अभी भी मौजूद है ये सारनो। आज भी लड़का लड़की को देखने जाता है या लड़की लड़के को देखने जाती है, लेकिन पहले वाला इंसिडेंट जाता हो तो दूसरा आउटकम होता है। लेकिन फिर भी अब जो है गर्ल्स भी, नाउ गर्ल्स आर कैपेबल टू लुक आफ्टर द बॉयज, बॉयज की तरफ भी देखते हैं। ठीक है, हर शूटर्स आर कबीर, हरेश एंड अमित, ये कुछ कैरेक्टर्स है, इनके बीच में कहानी इर्द गिर्द जाती है, डिटेल में हम बाद में देखेंगे स्टूडेंट। एंड लता फाइनली फाइंड हरेश एज अ सुटेबल बॉय। ठीक है, तो यहां पर ये प्रश्न कितने इतने सिंपल से कंटेंट में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। कितनी फैमिली है, मिसेस रूपा कौन है, लता क्या है, कौन है, कितने कैरेक्टर्स है, और उसमें से सुटेबल बॉय कौन बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपको पहले तो बेसिक क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। गॉट इट? यस आर नो? यस आर नो? सो स्टूडेंट, अ सुटेबल बॉय ये वन ऑफ द फेमस वर्क है, आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद में स्टूडेंट यहां देखिए आप, हियर 5वें नंबर पे, अ सुटेबल गर्ल अपकमिंग। आप देखिए असुटेबल गर्ल, है ना भाई, सुटेबल बॉय तो हो गया, लेकिन अब जो है असुटेबल गर्ल ये अपकमिंग है। जंप सीक्वल का मतलब ये है कि विक्रम सेठ जी ने डिक्लेयर किया है कि ये जो थीम थी असुटेबल बॉय की, आफ्टर इंडिपेंडेंस थी, यानी ओल्ड थीम, या कह ले कि 1950-60 के बीच की थीम जो भी है। लेकिन ये जो असुटेबल गर्ल है, उन्होंने कहा है कि इसकी थीम जो है पुरानी नहीं रहेगी, इसकी थीम वर्तमान में जो करेंट सिनारियो है उसको देखते हुए रखी जाएगी। गॉट इट स्टूडेंट? करेंट सिनारियो के हिसाब से इसकी थीम को रखा जाएगा, इसलिए इसको जंप सीक्वल कहा है। गॉट इट? अपकमिंग है। 2013 में आना था लेकिन आया नहीं है, 2017 में फिर आना था, 2019, और अभी भी स्टिल वी आर वेटिंग फॉर अ सुटेबल गर्ल, इट वाज नॉट पब्लिश्ड येट। एंड देयर इज अनदर you can say a novel, An Equal Music, published in 1999, deals with the troubled love life of violinist। एक म्यूजिशियन है, उनकी ट्रबल लव लाइफ, जैसे आशिकी 2 और आप देखा होगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो एन इक्वल म्यूजिक ये आपको ध्यान रखना है। And here are some more works written by Vikram Seth। As I told you student, Vikram Seth is not only a novelist,
but also he is you can say poet, है ना? So he has written some you can say poetry. Here are some name of the poems. Mapping, published in 1980. From Haven Lake, 1983. The Humble Administrator's Garden, 1985. All You Sleep Who Sleep Tonight, 1990. Wesley Tales, 1991. The Frog and the Nightingale, 1994. These are some major poems. And non-fiction, Two Lives, 2005. Okay, now the class is going to over, right? So I think okay, I think this is our today's class, student. I hope you enjoyed this class. And one thing I would like to remember, I would like to remind you, student, once again, please वीडियो को बार बार देखें, पीडीएफ को रिवाइज करें, एंड प्लीज मेक योर ओन नोट्स आल्सो. पीडीएफ आपके मोबाइल में रहेगी, एनी टाइम यू कैन रिवाइज इट. गॉट इट? So thank you very much, student. It is enough for today. I hope. Once again, I would like to request you, today is 13th April 2023, and the day has, you can say, born today. आज इसका जन्म हुआ. We lived today, and it was the last day of our life. It is now, it is you can say it is going to end. So student, does every moment, every day is new for us. Once again, I remind you, आप गंभीरता से सोचेंगे तो हर दिन हर क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. लेकिन जिंदगी को भी जीना है स्टूडेंट, हमें जिंदगी को भी जीना है, हर पल जीना है. Would you like to listen few lines from my side? स्टूडेंट, आप ध्यान से सुनिए. मैंने कहा कि हर दिन हर पल में क्षण है, हर पल में जिंदगी है स्टूडेंट. तो किसी ने कहा है, देखिए सपने देखना है, आप लोग सपने देख रहे हैं, यू आर एंजॉयिंग. स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, स्पीकिंग, everything. Please every day study at home, every day go for self study. There are LSRW format in English. If you want to learn, if you want to improve your English, then you have to pay attention towards four pillars are there for learning English. LSRW. Do you know what do you mean by LSRW? L means listening. Student, start listening more and more. Then speaking, LSR, speaking, start speaking. Then reading, and then W means writing. These four pillars, if you are quite well in these four pillars, then it means that you are quite well in English. Student, but first of all, let me ask you, क्या आप लोग जो है quite well in reading? Do you read English very fastly as you read Hindi? या आप एकदम बिल्कुल without any hurdle, without any stop, do you read continuously? Can you read English? Then आपको पहले, first of all, you should read properly. Your pronunciation should be properly, है ना? If you don't, then you should go for if you read any articles, suppose these slides you read, so read major Indian English novelist. Read by speaking. Student, to improve English, I am telling you, if you want to improve, yes, read by speaking. This will improve you. बोल के पढ़ें, अंग्रेजी को आदत में लाएं. Got it? So listen carefully, student. I would like to tell you, जिंदगी को जिंदा दिली से जीना है. और लास्ट की ये पंक्तियां सुन के हम लोग क्लास को एंड करते हैं कि ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल है. ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल है, ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है. हर पल में कितनी जिंदगी है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.